Namaskar, hello and welcome to today's edition of Rethink India Forum 2022. स्वतंत्रता के 30 वर्ष पूर्व वर्ष 2017 में रीथिंक इंडिया ने भारतवर्ष के गुरुओं के बीच में एक संकल्पना रखी थी कि क्या भारतवर्ष आज के इस वूका के एरा में स्थिरता को ला पाएगा। उस दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 108 कुलपति उस सभागार में उपस्थित थे और वहां पर भारत इंडियाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्री 5.0 का एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पेपर सभी गुरु वृंदों के समक्ष रखा गया था और एक विजन एंड एक्शन प्लान 2047 की बात की गई कि कैन इंडिया कैटापुल्ट स्थिरता, क्या भारतवर्ष एक फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको कि अगर हम एक्रोनोमाइज करके देखें तो स्थिर शब्द की व्युत्पत्ति होती है, इट इमर्जेस एज स्थिरता एज वी नो एज स्टेबिलिटी। वहां पर कहा गया कि फॉर द लास्ट 300 years द वर्ल्ड हैज मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस in material development, ending up controlling the elements from mechanical means to that of electrical ones, to electronics, to the now prevalent age of convergence of information, popularly ascribed to as the fourth industrial revolution, which is being defined and refined every passing quarter. Though the human race has progressed immensely in these 300 years, it has been subjected to epochs of terrific turmoil ranging from colonial imperialism, drain of sovereign national wealth leading to abject poverty, world wars, environmental degradation, financial meltdowns, etc. Material prosperity has come at the cost of losing mental peace, social stability, and human values to a great extent. We are at the cusp of a new era whereby the technological control over the elements would be almost absolute, and the direction of its deployment would define the future fate of humanity as a whole. This is where India, the antiquated civilization of the world, which entered into an age of material regression post the colossal annihilation resulted out of the Mahabharata war, which is presumed to be the epitome of material scientific progress, dated at least 3,000 years ago, comes into prominence. Can India offer its civilizational wisdom and intellectual traditions to steer through the contemporary material advances to lead the world towards a stable epoch of lasting peace and prosperity? Can the characteristic Indian thought on the philosophical foundations of human existence, social order, education, economy, polity, governance, administration, management, environment, development come to an aid to this objective? Can the Indian techno-managerial paradigms concerning food, healthcare, water, waste, sanitation, housing, defense, security, energy, space, transport, so and so forth, present an additional leeway to the ongoing discourse? Can India lead this impending fifth industrial revolution, Sthirta, which would be stable, universal, and all-encompassing? It's with this invitation we sent out. We requested the propositions, the addresses of some of the savants of Indian intellectualism, Indian thought process from across academia, industry, government, all through. Can we re-engineer the global world order into the integral Indic quartet of Dharma, Earth, Calm, and Moksha? And today we have the great good fortune of having one such savant with us, Shri Raghu Hari Dalmia ji, who happens to be one of the exponents of industry. And today he would be presenting his address on the theme of Vasudhaiva Kutumbakam और भारतीय क्वार्टेट के परिप्रेक्ष्य में भारत राष्ट्र। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री रघुहरी डालमिया जी को कि वो अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। और जो एक छोटी सी संकल्पना हमने रखी है कि क्या भारतीय अधिष्ठान के अंतर्गत हम ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को री इंजीनियर कर सकेंगे,
तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके व्यस्त शेड्यूल से समय निकालने के लिए। ओवर टू श्री रघुहरी डालमिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आज बुलाने के लिए, और मेरे को बहुत खुशी है कि रीथिंक इंडिया ने इस तरह की सोच से आगे बढ़ने की बात करी है कि भारत में कैसे हम री इंजीनियरिंग कर सकते हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, और किस तरीके से भारत इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का एक लीडर बन सकता है। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर प्रेमव्रत को प्रणाम करना चाहता हूं। मेरे प्रोफेसर रहे हैं आईआईटी में, और हमेशा मैं इनको देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और इनके प्रेजेंस से मेरे को आशीर्वाद मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं शुरू करता हूं। मैं बात करता हूं वसुधैव कुटुंबकम की। जब हम बात करते हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबल लीडरशिप, तो वसुधैव कुटुंबकम एक एसेंशियल पार्ट बन सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन बन सकता है। और उसके साथ साथ ये तभी संभव है जब हम अहिंसा को आगे बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा साथ साथ कैसे चल सकते हैं। अहिंसा के लिए न्याय चाहिए, न्याय के लिए धर्म चाहिए, और धर्म से ही हमारा वसुधैव कुटुंबकम और सारा विश्व एक कुटुंब की तरह से रहे, और सारा कुटुंब सारा विश्व एक अहिंसा के रूप में चले, तभी ये संभव है। अब अहिंसा क्या है? पहला विचार तो गांधी का विचार है कि अहिंसा वो चीज है जो आपको कुछ भी हिंसा नहीं करनी है। दूसरा थप्पड़ मारे तो आप थप्पड़ खा लो, दूसरा आपको वायलेंस करे तो आप उस वायलेंस को सह लो, दूसरा आपको मार डालना चाहे तो आप मरने को तैयार हो जाओ, दूसरा आपको रेप करना चाहे तो आप अपने आप को सबमिट कर दो। ये गांधी की अहिंसा है। इस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर या वसुधैव कुटुंबकम संभव नहीं है, क्योंकि गांधी भूल गए। गांधी ने केवल ये सोचा अहिंसा परमो धर्म। सेकंड वाक्य जो उसका है, धर्म हिंसा तथैव च, वो इस बात को भूल गए। तो इस बात को मैं आगे भी बाद में डिस्कस करूंगा गांधी के विचार को लेके। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? एक तरफ तो हम बात करते हैं कि सारे वर्ल्ड ऑर्डर में सारा विश्व जो है वो एक कुटुंब की तरह से रहे, परंतु जब तक सारे विश्व में न्याय नहीं आएगा, जब तक सारे विश्व में स्वार्थ रहेगा, पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह से नहीं रह सकता है, भाई भाई की तरह से नहीं रह सकता है। मैं एक बार संगम टॉक सुन रहा था, सर्वेश तिवारी जी की टॉक थी। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताया था। किसी भी उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम के बारे में लिखा नहीं है। कहां लिखा है? हितोपदेश, पंचतंत्र की कहानियां, सिंहासन बत्तीसी, ये जो कहानियां आती हैं, इसमें नेगेटिव पार्ट को दिखाया है वसुधैव कुटुंबकम के लिए कि ये एक तरफा नहीं हो सकता है, ये दो तरफा होना पड़ेगा। हाथ ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजानी पड़ेगी। धर्म और न्याय साथ में चलना पड़ेगा। अधर्म और अन्याय और स्वार्थ के साथ वसुधैव कुटुंबकम संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की। ये है क्या? हम इनकी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन ये है क्या? धर्म को हम बोलेंगे एक जिम्मेदारी, समाज की तरफ एक जिम्मेदारी। अर्थ को हम बोलेंगे एक अचीवमेंट, सक्सेस। काम को बोलेंगे, मान लीजिए, इंटीमेसी, सेंसुअलिटी। मोक्ष को बोलेंगे फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। धर्म को हम बोलेंगे
गिविंग वैल्यू टू पीपल। अर्थ को बोलेंगे क्रिएटिंग दैट वैल्यू विच कैन बी गिवन टू द पीपल। काम को बोलेंगे यूटिलाइजिंग द वैल्यू, एंजॉइंग द वैल्यू। और मोक्ष को बोलेंगे हम वैल्यू से परे हो गए, हमको वैल्यू का एंजॉयमेंट की जरूरत नहीं है। धर्म क्या है? गिविंग बैक टू सोसाइटी। धर्म क्या है? समाज को मदद करना। अर्थ क्या है? विनिंग। अगर हम कमाएंगे नहीं, कैसे कमाएंगे? विनिंग नहीं होगी, बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करेंगे, हमने जो टारगेट सेट किए हैं उसको अचीव करके एक्सीड नहीं करेंगे तो अर्थ बेकार है। काम क्या है? काम है डिजायरिंग एंड टू बी डिजायर्ड। चाहे मित्र हो, परिवार हो, जहां पे हम सेफ्टी फील करते हो। और मोक्ष क्या है? पेन और सफरिंग से हमको रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये हैं हमारे 4 का क्वार्टेट जो हम अपने भारतीय सिस्टम में बात करते हैं। अब इसके परिप्रेक्ष्य में हम अपने इतिहास को देखें। हमारा देश का जो इतिहास है, हम इस इतिहास को देखें। सतयुग के समय से, जब हमारे वेद थे, उस समय से हम राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़ते आ रहे हैं। जो राजा अच्छा था, जिसका राज्य सुचारू रूप से चलता था, जिसका राज्य न्याय से चलता था, धर्म से चलता था, वहां पे प्रॉस्पेरिटी थी, वहां पे लोगों में खुशहाली थी, और वहां पे वो लोग, उनमें दम था, उनकी स्ट्रेंथ थी, उस राज्य की स्ट्रेंथ थी। जिन राज्यों में अन्याय था, अधर्म था, वहां पे क्रूएलिटी थी, लोगों के प्रति लूटना था, और उसकी वजह से राज्य की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाती थी। फिर हम राम राज्य की बात करते हैं। राम जी के समय जो राज्य था, फुल टाइम उन्होंने धर्म को पहले सामने रखा, और उनकी जितनी भी डिसीजंस थी वो धर्म को सामने रखते हुए करी। तो आज हम बात करते हैं राम राज्य। द्वापर युग में आते हैं तो हम कृष्ण की बात करते हैं। श्री कृष्ण का, और महाभारत की कहानी सबने पढ़ी है, उसके अंदर श्री कृष्ण के जितने भी एक्शंस थे वो धर्म को मूल में रखते हुए थे। ऊपर से हमको कभी कभी लगता था कि ये बात श्री कृष्ण जी ने गलत करी, लेकिन अगर उसके हम जड़ में जाएंगे तो वहां पे धर्म और न्याय ही सामने था, मूल में था, उसको कभी भी नहीं छोड़ा गया। पूरी महाभारत की कथा में हमको यही सीखने को मिलता है। फिर हम आते हैं 2500 वर्ष पहले, चाणक्य। चाणक्य की कथा में क्या था? जो नंद वंश था, जो बहुत लूट करता था, क्रूएल था, लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, उनको हटा के उन्होंने मौर्य वंश की शिला रखी, चंद्रगुप्त को स्थापित किया, और जो राज्य उन्होंने स्थापित किया वो न्याय और धर्म के ऊपर था। उनका जो अर्थशास्त्र, जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जो पूरा ग्रंथ लिखा, पुस्तक तो क्या, वो तो पूरा ग्रंथ है, उन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा वो, उसको मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि उसमें पूरा का पूरा शास्त्र जो है वो न्याय और धर्म के ऊपर आधारित है। उसके बाद हम आते हैं आगे, जो हमारे बड़े सारे साम्राज्य हुए भारत के अंदर, उत्तर भारत में हुए, पूर्वोत्तर भारत में हुए, पश्चिम भारत में हुए, दक्षिण भारत में हुए, सारे के सारे साम्राज्य इतने अच्छे तरीके से फैले थे। हम गुप्ता साम्राज्य की बात कर लें, विक्रमादित्य राजा की बात कर लें, चोला साम्राज्य की बात कर लें, विजयनगर साम्राज्य की बात कर लें, और इतने सारे साम्राज्य थे, इतने अच्छे और सुदृढ़ साम्राज्य थे, क्योंकि केवल उनका राज्य जो था वो न्याय और धर्म के ऊपर आधारित था। उसके बाद हम आते हैं रीसेंट हिस्ट्री, मराठा और सिसोदिया वंश की हिस्ट्री। उसी समय हमारे मुसलमान इन्वेडर्स आए
और मुगल आए। इन लोगों ने अपने राज्य को, अपने लोगों को संभाल के रखा। धर्म के प्रति आस्था होने के कारण ही ये डटे रहे दुश्मनों के सामने। अगर इनकी धर्म के प्रति आस्था नहीं होती, ये धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए अगर नहीं आते, नहीं रहते, तो कभी का ये राज्य भी मुसलमानों के अंडर में जा चुके होते। मुसलमानों के राज्यों में क्या हुआ? जितने भी इन्वेडर्स आए, मुगल आए, रूथलेस, क्रूएल, लूट। क्यों? क्योंकि उनका साम्राज्य जो था वो अधर्म पे आधारित था। उनका साम्राज्य जो था वो क्रूएल्टी पे, अन्याय पे आधारित था। आप महमूद गजनी की कहानी सुन लीजिए। महमूद गजनी की कहानी में क्या हुआ? वो आया और एक बार नहीं आया, कई वर्षों तक वो आता रहा और हमारे मंदिरों को लूटता रहा और हम लूटते रहे। हम क्यों लूटते रहे? हम केवल इसलिए लूटते रहे कि हम लोगों ने, उस समय के जो लोग थे, उन्होंने महमूद गजनी के सामने अपना शस्त्र नहीं उठाया, लड़ाई नहीं करी, चुपचाप अपने आप को सबमिट कर दिया और केवल हम प्रार्थना करते रहे भगवान से कि हे भगवान हमें बचाओ, हे भगवान हमें बचाओ। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। और वही काम मराठाओं ने किया, वही काम सिसोदियाओं ने किया। पृथ्वीराज की कहानी आती है और सिसोदिया वंश के कुछ महाराणाओं की कहानी आती है। उन्होंने दुश्मन से लड़के उसको माफ कर दिया, उसको हराया और उसको माफ कर दिया। उसका रिजल्ट दोबारा आया और दोबारा आके उसने पृथ्वीराज को हराया। मोहम्मद गौरी की कहानी है, सबको मालूम है। दोबारा आया और सबको हराया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कत्ल कर दिया। उसकी पत्नी की क्या हालत हुई मैं बयान नहीं कर सकता हूं। उसी तरह से सिसोदिया वंश के महाराणा कईयों ने अपने ऐसे इन्वेडर्स को हराया और माफ कर दिया। तो ये जो क्षात्र धर्म है, क्षात्र धर्म में माफी नहीं हो सकती। दुश्मन जो है उसके साथ रियायत नहीं हो सकती, ये हमारा क्षात्र धर्म बोलता है। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में क्या हुआ? एक तरफ बहुत सारे राज्य थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ संधि कर ली। और संधि क्यों करी उन्होंने? संधि करने से उनका स्वार्थ सामने आता था, उनका स्वार्थ पूरा होता था और ब्रिटिशर्स का स्वार्थ पूरा होता था। तो वो ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने संधि करके ब्रिटिशर्स के अंडर में उन्होंने अपना राज्य चलाया। जिसे बोलते हैं सिंधिया राज, जयपुर का राज, जोधपुर का राज, शायद उदयपुर का राज्य भी था, अवध का राज्य, इस तरह से कई सारे राज्य थे। परंतु 1857 की क्रांति में झांसी का राज्य, उन्होंने लड़ाई लड़ी, हार गए, क्रांति हुई, हमको आजादी नहीं मिली, परंतु हार गए। परंतु अपने आप को मरने को तैयार थे, शस्त्र उठाने को तैयार थे, परंतु अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए हम लड़ाई करने को तैयार थे। धर्म और न्याय। क्रांतिकारी 1857 के क्रांतिकारी, परंतु ब्रिटिश आए 1757 में। 1757 से 1947 तक क्रांतिकारियों की भरमार लगी हुई थी। सब लोग अपनी गर्दन कटाने को तैयार थे, फांसी चढ़ने को तैयार थे, काला पानी जाने को तैयार थे। परंतु ब्रिटिश साम्राज्य को यहां से हटाना है, हमको अपना साम्राज्य लाना है, न्याय के तरीके से रहना है, धर्म के तरीके से रहना है।
सुभाष बोस की कहानी सबको मालूम है। यहां तक कि ब्रिटिश ने खुद किया था कि हमको जाना पड़ा क्योंकि सुभाष बोस थे, INA था, इसलिए हमको जाना पड़ा। अगर वो नहीं होता तो ये आजादी हमको गांधी के भरोसे नहीं मिलने वाली थी। वीर सावरकर की कहानी, उनको काला पानी तक भेज दिया, वो सहने को तैयार थे लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं थे। उसके आगे के इतिहास की हम बात करते हैं। गांधी ने क्या किया? हम गांधी को बहुत बड़ा आइकॉन मानते हैं, मैं नहीं मानता हूं। गांधी बोले अहिंसा, हमको अहिंसा से आजादी लेनी है। उनकी अहिंसा कैसी थी मैंने पहले बता दिया, लेकिन उनकी अहिंसा के साथ साथ मुस्लिम तुष्टीकरण था, उनकी अहिंसा के साथ साथ फेवरेटिज्म था, उनकी अहिंसा के साथ साथ ब्लैकमेल था। जहां ब्लैकमेल होगा, जहां तुष्टीकरण होगा, जहां फेवरेटिज्म होगा, वहां अधर्म होगा। गांधी बोलते थे मैं धर्म के फेवर में हूं, परंतु उनका सारा का सारा जो विचारधारा थी वो सारी की सारी अधर्म की तरफ थी और इसलिए अन्याय की तरफ थी। भारत राष्ट्र उस समय अगर अधर्म की तरफ नहीं चल के धर्म की तरफ चलता, पटेल हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते, तो शायद आज भारत राष्ट्र का नक्शा ही एकदम कुछ अलग हो जाता। क्या नेहरू ने फॉलो किया धर्म? नेहरू भी सेल्फ सेंटर्ड, नेहरू भी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, नेहरू भी अपने दोस्तों के लिए काम करना, राष्ट्र के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। हमारे क्षात्र धर्म को उसने बहुत वीक कर दिया। आर्म्ड फोर्सेस हमारे उसकी थी, हम तो अहिंसा पे विश्वास करते हैं इसलिए हमसे कोई लड़ाई नहीं करेगा, तो हमको आर्म्ड फोर्सेस पुलिस की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आर्म्ड फोर्सेस को उसने कहीं पे अस्त्र शस्त्र से उनको लैस नहीं किया। हुआ पाकिस्तान का युद्ध, चीन का युद्ध, और उसमें पाकिस्तान ने हमको बहुत सारी हमारी टेरिटरी हमसे छीन के रख ली। चीन के युद्ध में बड़ी सारी टेरिटरी हमारी उसने छीन के रख ली, हम बुरी तरह से हारे। उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यूपीए का प्रोग्राम, हर जगह आप देखेंगे सेल्फ, अन्याय, लूट, अधर्म, और वो ही हमारे देश का इतिहास रहा पूरा 70 वर्ष तक। 70, आज हम 75 वर्ष की बात करते हैं, मैं केवल 2014 तक की बात कर रहा हूं। नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी थी? ऐसी पॉलिसीज थी जहां हम वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते। क्यों? कि प्राइवेट सेक्टर को बुरी तरह से दबा रखा था, मुट्ठी बांध, उनके हाथ बांध रखे थे। तो वैल्यू एडिशन कहां से होगा? पब्लिक सेक्टर सबको मालूम है वैल्यू एडिशन नहीं कर पाया। जब वैल्यू एडिशन नहीं होगा तो वैल्यू क्रिएशन नहीं होगा, क्रिएशन नहीं होगा तो यूज कैसे होगा, उसको कोई एंजॉय कैसे करेगा? तो कहां धर्म होगा, कहां अर्थ होगा, कहां काम होगा, और कहां फिर मोक्ष होगा? वही चीज हमारी इंदिरा गांधी ने फॉलो करी। इतना टाइट मुट्ठी करके रखी प्राइवेट सेक्टर को कि वो जहां पे वो दे सकती थी वो पैसा देने को तैयार थी। आप मेरे को लाइक कीजिए, मुझे ब्राइब दीजिए, तो मैं आपको सब कुछ लाइसेंस दूंगी, सब कुछ करूंगी, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये लाइसेंस राज हमारा कंटिन्यू करता गया राजीव गांधी के समय तक, जब तक हमारी एक बुरी हालत नहीं होगी, हमको सोना गिरवी नहीं रखना पड़ा। हमारे राज्यों में क्या हो रहा है? हर राज्य के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो केवल और केवल पारिवारिक पार्टीज हैं। और पारिवारिक पार्टीज क्यों खड़ी होती हैं? क्योंकि उनको पॉलिटिक्स से कमाना होता है। पॉलिटिक्स एक पावर और धन कमाने का, वेल्थ कमाने का एक तरीका बन गया है। वो कहीं भी न्याय और धर्म की तरफ नहीं है। मैं पावर में आ गया तो मैं कितना लूट सकता हूं। सारे राज्य, हम एक से एक राज्य की बात करें, सारे राज्यों में हमारी यही हालत है।
तो फिर हमारा डेवलपमेंट कहां से होगा? ये चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। न्याय ही धर्म का मूल है। जहां न्याय होगा वहां धर्म होगा। अब हम देखें, क्या हमारे रूलर्स ने अपनी जिम्मेदारी सोसाइटी की तरफ, समाज की तरफ निभाई? क्या उन्होंने वैल्यू दी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने के लिए? यदि नहीं, तो उन्होंने धर्म नहीं निभाया। क्या उन्होंने सक्सेस और अचीवमेंट के लिए एनकरेजमेंट किया? हमारा पब्लिक सेक्टर, नो सक्सेस नो अचीवमेंट। तो वैल्यू क्रिएशन कहां से होगी? वैल्यू क्रिएशन नहीं होगी तो वैल्यू कंज्यूम कहां से होगी? जब वैल्यू कंज्यूम नहीं होगी तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तो हमारा काम की पूर्ति कहां से होगी? परंतु यहीं से अगर हम बात करते हैं तो समाज ने क्या किया उस समय में? समाज ने जितना संभव हो सका, वैश्य समाज की बात करता हूं, वैश्य समाज ने क्या किया? उनकी जितने भी हाथ बंधे हुए थे, विद इन दैट पॉसिबिलिटी उन्होंने क्या क्रिएट किया? उन्होंने समाज को दिया। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो वैश्य कर रहे थे। उन्होंने समाज को दिया, उन्होंने वैल्यू क्रिएट करी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई समाज की तरफ। उनको वो करना, जो रूलर्स को काम करना चाहिए था, वो वैश्य ने किया। रूलर्स ने क्षात्र धर्म नहीं निभाया। हम अपनी प्रार्थना में 3 शक्तियों को पूजते हैं। 3 शक्ति कौन सी हैं? सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा। किसी भी देश के उत्थान के लिए ये तीनों शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। और पूजा का मतलब केवल वो नहीं है कि हम मंदिर जाएं और इनकी पूजा करें। यहां से पूजा का मतलब है इनको डेवलप कैसे किया जाए, इनको शक्ति के रूप में, राष्ट्र की शक्ति के रूप में इनको डेवलप कैसे किया जाए। सरस्वती मतलब बुद्धि, बुद्धिमत्ता, चरित्र, संस्कार। लक्ष्मी मतलब देश का व्यापार, देश की इनकम, आमदनी, देश के हर नागरिक की आमदनी। केवल देश की आमदनी नहीं, हम जीडीपी की बात कर सकते हैं, लेकिन गरीब से गरीब जो है वो बेचारा गरीब रह गया। तो हर नागरिक की आमदनी, विकास, उन्नति, सफलता। दुर्गा का मतलब देश की रक्षा, बाहर के दुश्मन, अंदर के दुश्मन। और फिर से हम बात करते हैं, सरस्वती मतलब देश और विदेश में हमारा ज्ञान फैलाना, लोगों को हमारे ज्ञान अर्जित करने के लिए आमंत्रित करना कि आप आओ, ज्ञान को अर्जित करो। लक्ष्मी मतलब देश विदेश में दूसरे देशों की सहायता करना, अपनी साख बैठाना। आप सहायता करोगे तो अपने देश की साख होगी। दुर्गा मतलब देश विदेश में जो हमारे मित्र हैं उनकी भी रक्षा करना, अपनी रक्षा करना, उनकी भी रक्षा करना। और फिर से सरस्वती मतलब हमारे देश का वो अपार ज्ञान जो हमारे चारों वेद, पुराण, शास्त्रों में भरा पड़ा है, जिसको आज वापस उजागर करना बहुत जरूरी हो गया है। ये ज्ञान हमारा अपार धन है। लक्ष्मी मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्र, इनकी उन्नति। हर व्यक्ति के पास काम होना चाहिए, कोई बिना काम के नहीं बैठना चाहिए। हमारे व्यापार के नए आयाम, जिससे हम इनको बढ़ा सकें देश में, विदेश में। और साथ में हर नागरिक की उन्नति। कौन सी उन्नति? केवल इकोनॉमिक उन्नति नहीं, बौद्धिक उन्नति। दुर्गा मतलब अस्त्र और शस्त्र बनाने की खुद की क्षमता। और फिर से आप गिनते रहिए, क्या है हमारी सरस्वती, क्या है हमारी लक्ष्मी, क्या है हमारी दुर्गा।
रामधारी सिंह दिनकर की आपने कविता सुनी होगी, सहनशीलता दया क्षमा को। ये जो सहनशीलता की, दया क्षमा की बात करते हैं, ये तभी आता है जब हम अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम की बात करें। बिना उसके ये सहनशीलता दया क्षमा नहीं आ सकता। तो सहनशीलता दया क्षमा को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बल नहीं होगा तो विश्व हमें नहीं पूजेगा, और ये बल हमारा है सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा। दोस्तों, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और धर्म की रक्षा होगी सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा से। जब तक हमारा भारत लक्ष्मी और दुर्गा का रूप धारण नहीं करेगा, तब तक हमारी सरस्वती कहीं भी पूजी नहीं जाएगी। मतलब हमारे ज्ञान को कोई कहीं नहीं पूजेगा। आज हमारी स्थिति क्या है? भारत का इतना अपार ज्ञान, लेकिन क्रेडिट किसको मिलता है? पश्चिमी ज्ञान को। लेके वो यहां से गए, लेकिन क्रेडिट वो खुद लेके चले गए। क्यों? कि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी, न सरस्वती थी न दुर्गा थी। और लक्ष्मी और दुर्गा का रूप सरस्वती में ही निहित है। क्यों? ज्ञान होगा तो लक्ष्मी और दुर्गा का आवाहन होगा। तो सरस्वती होंगी तो दुर्गा और लक्ष्मी का आवाहन हो सकता है, और यही हमारे भारत राष्ट्र की नियति है। तो दोस्तों, अहिंसा काम नहीं करेगी जब तक धर्म हिंसा तथैव च साथ में नहीं रहेगा। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। और वसुधैव कुटुंबकम काम नहीं करेगा जब तक हमारे राष्ट्र की लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती उच्च नहीं रहेंगी, ऊंची नहीं रहेंगी, वो बल हमारे पास नहीं होगा। दोस्तों, वीरा भोग्या वसुंधरा, वीरों को ही वसुंधरा का भोग मिलता है, और हमारे राष्ट्र को वीर बनने के लिए सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी का आवाहन करना पड़ेगा। और वो आवाहन हमने किया तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं, और उस विश्व गुरु बन के फिर हम वसुधैव कुटुंबकम भी कर सकते हैं, अहिंसा भी कर सकते हैं, और सारे विश्व के ऑर्डर को हम अपने हिसाब से चला भी सकते हैं, री इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। थैंक्स अ लॉट सर। एक बहुत ही सार गर्भित वक्तव्य, और समग्रता की जो बात हमने कही कि जो धर्म का आधार न्याय बताया आपने, और धर्म के स्थापना के लिए हमें अर्थ और कामना, जो एक कंटिन्यूअम का पूरा प्रोसेस, और कैसे आपने सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का विवेचन किया। I think the excess of virtue is somewhere was responsible for our downfall or degradation. यह भी सर ने बहुत सुंदरता से बात रखी कि अर्ध ज्ञान कहीं ना कहीं हमने अपनी जो सरस्वती हैं वो अर्ध सरस्वती के रूप में ले लिया, कहीं ना कहीं अतिवादिता धर्म की हो गई। हमने उसके पूर्ण सत्य को, द इंटीग्रल ट्रुथ, वी कुड नॉट लुक एट इट। मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे पूज्यपाद प्रोफेसर प्रेमव्रत भी हैं, तो वो समापन में 2 आशीर्वचन के शब्द कहें। उनका कल एक बहुत ही वक्तव्य सुंदर हम लोग सुनेंगे इसी फोरम के तत्वाधान में, पर आज सर स्वयं रहे हैं, तो उनका समापन। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों का सुन रहा हूँ, और दालमिया जी मेरे प्रति कुछ ज्यादा विनम्र हैं। ऐसे एक छात्र को प्राप्त करके
मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। नहीं तो इनके मुकाबले में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। ये जो समग्रता से सेवा कर रहे हैं अपने पूरी समाज की, वाकई बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद डालमिया जी, और मुझे सुनकर पार्टिसिपेट करके बड़ा अच्छा लगा। और राघव जी अपने दोनों पति पत्नी मिलकर जो समाज की सेवा कर रहे हैं वो अपने आप में अनुकरणीय है। बहुत कमाल का है। मेरी बहुत शुभकामनाएं राघव जी आपको भी। और डालमिया जी तो मैं इनके उसमें व्हाट्सएप पे इनके जो भारतीय इतिहास की पुनर्जागरण का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है, मैं उसमें उससे मैं वाकिफ रहता हूँ। तो आज मैं इसमें सम्मिलित होकर अपने आप को बहुत अनुग्रहित महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी, डालमिया जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का बस बोलना चाहूंगा, जी, हमारे भारत का गौरव इतिहास में है, और अगर हम वो सच्चा इतिहास नहीं जानेंगे जी, कभी भी अपने गौरव को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। सही, जब सही। तक हमारे मन के अंदर गर्व नहीं होगा, बिल्कुल, तब तक हम वापस उस गौरव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत ही सारगर्भित बात सर ने कही है, और हम प्रयास करेंगे कि इस बात को कैसे और लार्जर स्पेसेस में पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय आज के इस फोरम के लिए निकाला। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम सर। थैंक यू, बहुत बहुत